अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। ओपन योर फिजिक्स बुक बेटे। पेज नंबर आपकी बुक का है 155। पेज नंबर 155। ओपन योर बुक। चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे थे, डैट इज़ अबाउट वेव्स। और रिपल टैंक हमने कंप्लीट कर लिया था अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में आज जो टॉपिक आपको मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ डैट इज़ बीट्स। हम क्या पढ़ेंगे? टॉपिक आपका है 7.9 अबाउट बीट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। When two waves of slightly different frequency traveling in the same direction overlap each other, then there is a periodic variation of sound between maximum and minimum loudness, which is called as beats. इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें और इन कॉमर्स में आप इसको इनक्लोज कर लें। Tuning fork give out pure note single frequency if two tuning fork A and B of the same frequency, say 32 Hz, are sounded separately, they will give out pure notes. If they outsounded simultaneously, it will be difficult to differentiate the notes of one tuning fork from that of the other. The sound waves of the two will be superposed on each other and will be heard by the human ear as a single pure note. If the tuning fork B is loaded with some extra wax or plasticine, its frequency will be lowered slightly, say it become 28 Hz. If now the two tuning forks are sounded together, a note of alternating increasing and decreasing intensity will be heard. This note is called beat note, or a beat which is due to interference between the sound wave forming tuning from tuning fork A and B. Figure 7.12a shows the wavelength of the note emitted from a tuning fork A. Similarly, B shows the wavelength of a note emitted from tuning fork B. When both the tuning fork A and B are sounded together, resultant waveform is shown in figure 7.12. It shows how do the beat note occur. At some instant x, the displacement of the two waves is in the same direction. The resultant displacement is large and the loud sound is heard. After 1/4 second, the displacement of the wave due to one tuning fork is opposite to the displacement of the wave due to the other tuning fork, resulting in minimum displacement at y. Hence, fade sound or note sound is heard. Another 1/4 second later, the displacement are regained in the same direction and a loud sound is heard again at point Z. As the difference of the frequency of two tuning fork is also 4 Hz, so we find that number of beats per second is equal to the difference between the frequencies of the tuning fork F1, FB. Number of beats is equals to FA minus FB. However, when the difference between the frequencies of two sound is more than 10 Hz, it becomes difficult to recognize the beats. छोटा सा टॉपिक था, मैंने पहले इस टॉपिक की क्या है आपको कर ली रीडिंग की। मैंने किस टॉपिक की बेटे? बीट्स की। व्हाट आर बीट्स बड़ा एक नया फिनोमेना है आप लोगों के लिए। इससे पहले हम इस चैप्टर में इसके बारे में नहीं पढ़ के आए। व्हाट आर बीट्स? बीट्स क्या होती हैं कि ये पीरियोडिक एक वेरिएशन है। पहले मैं आपको बुक वाली डेफिनेशन हम लोग पहले कर लेते हैं। व्हाट आर बीट्स? जब दो वेव्स, क्या मैंने वर्ड बोला? जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो, एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, लिटिल बिट। जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट हो, जब वो एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो और वो एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएं, ठीक है, तो जो पीरियोडिक वेरिएशन आती है साउंड में, मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस, यानी कि ज़्यादा बहुत तेज़ आवाज़ और कम तेज़ आवाज़ में, यानी कि आवाज़ दोनों तेज़ ही हैं, दोनों लाउड ही हैं, लेकिन एक मैक्सिमम है, एक मिनिमम लाउडनेस है, ठीक है। तो इन दोनों साउंड्स के दरमियान में जो वेरिएशन आएगी, जो एक चेंज आएगा, उस वेरिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं। मैंने क्या बता दिया? दोबारा सुने बेटे कि जब दो वेव्स जो कि एक दूसरे से फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंट हो, लेकिन फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए।
जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करें और एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएं तो उनके अंदर जो पीरियोडिक वेरिएशन आएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? पीरियोडिक वेरिएशन किस में? चेंज है ना। पीरियोडिक वेरिएशन का मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल से जो चेंज आता है उनकी लाउडनेस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज बीट्स। या इसको आप लोग सिंपल डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो कि बीट्स आर द पीरियोडिक वेरिएशन इन साउंड इंटेंसिटी हर्ड व्हेन टू साउंड वेव्स और स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज इंटरफेयर विद ईच अदर। ये ज़्यादा इजी डेफिनेशन है जो मैंने आपको भी बताई, ये भी आप राइट कर सकते हैं। क्या मैंने कहा कि बीट जो है एक पीरियोडिक वेरिएशन है जब डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की साउंड सुनी जाए और जब दो साउंड वेव जो हैं जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हों वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करें, तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? बीट्स कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल बीट्स की क्या है? डैट इज़ ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक तो आप सब फैमिलियर हो ना बेटे, वो वाई की तरह का एक फोक होता है, उसको हम ट्यूनिंग फोक कहते हैं। उसको अगर आप लोग यूं करके अगर हिलाओ तो आपको एक साउंड जो है वो फील होती है, डैट इज़ नोन एज ट्यूनिंग फोक। आपने देखा होगा। ट्यूनिंग फोक जो है वो इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। ट्यूनिंग फोक जो है डैट गिव आउट प्योर नोट्स, ठीक है। सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड यहाँ पे, सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो वेव है वो यहाँ पे जनरेट होती है, आपको उसका साउंड जो है वो सुनाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, बीट्स की एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जो है वो ट्यूनिंग फोक की एग्जाम्पल लेंगे। अगर आपने सपोज करना है कि आपके पास कोई से दो ट्यूनिंग फोक हैं, क्या दो ट्यूनिंग फोक हैं, एक है फोक ए, एक है फोक बी, और दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग कहते हैं कि सेम है। सपोज हमने क्या लिया? 32 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो यूनिट है किसका बेटे? फ्रीक्वेंसी का। दो ट्यूनिंग फोक हैं, एक फोक ए है, एक फोक बी है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या मैंने बता दी? 32 हर्ट्ज बता दी। दोनों जो हैं वो एक तरह के नोट्स जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये वर्ड जो नोट्स लिखा हुआ है या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने क्या कहा? साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप ये समझ लो, ठीक है। अगर ये दोनों, जब दोनों को हम मतलब साउंड प्रोड्यूस होती है, दोनों एकदम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मतलब एक मेरे हाथ में ए है, एक मेरे हाथ में बी है, मैं दोनों में इकट्ठा उनको वाइब्रेट करूं और दोनों में साउंड से कई एक साथ प्रोड्यूस हों, तो ये क्या होगा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप उन दोनों की साउंड में क्या कर सकें? डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ए की कौन सी साउंड है, बी की कौन सी साउंड है। वो दोनों सेम इकट्ठे होके ऐसी एक साउंड क्रिएट करते हैं कि उनको सेपरेट करना जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब ट्यूनिंग फोक में साउंड प्रोड्यूस हुई, उस साउंड किस फॉर्म में ट्रैवल करती है बेटे? साउंड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है। तो जो साउंड वेव्स हैं दोनों की, उन्होंने क्या किया? एक दूसरे को सुपरपोस्ट किया, और जो हमें आवाज़ सुनाई दी, यानी कि इंसानी कान को, ह्यूमन ईयर को जो साउंड जो है वो सुनाई देती है, वो सिंगल साउंड और इन लाउड साउंड जो है वो आपको सुनने में मिलती है। इसी तरह इसी एक्सपेरिमेंट को अगर आप फर्दर अब चेंज कर लें, दोबारा करें कि एक ट्यूनिंग फोक, यानी कि सपोज करते हैं हम ट्यूनिंग फोक बी है, उसके ऊपर अगर हम कुछ वैक्स अप्लाई कर लें, कुछ वैक्स लगा लें, यानी कि उसके ऊपर आप वैक्स लगाओ या प्लास्टिसिन अप्लाई कर दो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? स्लाइटली कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ए जिसके ऊपर आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो जैसे पहले मैंने क्या बताया था, उसकी फ्रीक्वेंसी 32 थी, जब हमने उसके ऊपर वैक्स अप्लाई की तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 28 हर्ट्ज होगी। अब क्या किया? एक की फ्रीक्वेंसी को हमने कम कर दिया, एक की फ्रीक्वेंसी को क्या हो गया? ज़्यादा होगी। एक की 32 है, एक की 28 है, लेकिन डिफरेंस क्या है? स्लाइट डिफरेंट है, डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या किया? इन दोनों ट्यूनिंग फोक्स को इकट्ठा हमने जो है वो मैंने इनको वाइब्रेट किया, तो आपको एक इंटेंसिटी, एक साउंड सुनाई देगी जिसकी इंटेंसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटीज़ होंगी, लेकिन दोनों की साउंड जो है टुगेदर आपको इकट्ठी सुनाई देगी और एक नोट क्रिएट करेगी। उस नोट को हम लोग क्या कहते हैं? बीट नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट नोट कहते हैं। और ये जो बीट नोट प्रोड्यूस होता है, ये क्यों प्रोड्यूस हुआ है? क्योंकि दो ट्यूनिंग फोक जो ए और बी है, उन दोनों की साउंड वेव्स ने क्या किया? इंटरफेयर किया। क्या किया? इंटरफेयर किया। इंटरफेरेंस का फिनोमेना हम लोग बेटे डिटेल से पढ़ के आए हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपने क्या करना है? हमने इनकी डिफरेंट अब शेप्स देखनी है कि ट्यूनिंग जो तीन फॉर्म्स आएंगी आपके पास। एक आपके पास आएगी, हम देखेंगे कि वो वेव फॉर्म आएगी जो कि ट्यूनिंग फोक ए की वजह से प्रोड्यूस हुई है। एक वो होगी जो कि ट्यूनिंग फोक बी की वजह से एमिट हुआ,
जो पूरा एक साउंड का नोट आया हमारे पास। और एक क्या आया कि जब ए और बी ने दोनों ने इकट्ठे जो है साउंड प्रोड्यूस की, देन आपके पास क्या आता है। तो मैं आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके बेटे 1 बाय 1 इसको जो है वो एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ईजीली इसको समझ सको आप लोग। मैं क्या कह रही हूँ कि हमारे पास बेटे इधर देखें आप लोग, इधर आए, लेट्स सी हेयर। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं नोट्स, हम बीट्स पढ़े हैं ना। आप यहाँ पे हेडिंग दें बीट्स, BE। हम क्या पढ़ रहे हैं, बीट्स। मैंने आपको क्या कहा, हमने बीट्स की एक डेफिनेशन पढ़ी जो कि आपकी बुक में थी। एक सिंपल डेफिनेशन ही मैंने आपको बताई कि आप लोग चाहो तो ऐसे भी राइट कर सकते हो। कैसे आप लोग लिखोगे, बीट्स आर द पीरियोडिक वेरिएशन in sound intensity heard when two sound waves of slightly different frequencies interfere each other. इंटरफेयर विद ईच अदर, ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी। हमने क्या कर लिया कि बीट्स आर द पीरियोडिक वेरिएशन इन साउंड इंटेंसिटी हर्ड व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर ईच अदर, ठीक है। ये क्या था, ये वो डेफिनेशन थी जो कि आपको मैंने पहले भी बताई थी कि हम ईजीएस्ट फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं। अब हमने एग्जांपल लेनी है, एक ट्यूनिंग फोक की हम एग्जांपल ले रहे हैं। आपके पास एक मैं वेव फॉर्म का जो नोट हमें सुनाई देता है जब ट्यूनिंग फोक हम एक, अब आपको जो डायग्राम मैं ड्रॉ करूँगी वो क्या करूँगी कि वो एक वेव फॉर्म की डायग्राम बनाऊँगी, वेव फॉर्म ऑफ द नोट एमिटी। जब हमने ट्यूनिंग फोक एक, यहाँ पे हम एक बनाते हैं एक 1A, ठीक है। सपोज मैं एक वेव बना रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आप सपोज करो कि मैंने कोई भी एक वेव बेटे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ए। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया। 4, ठीक है। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, एक वेव ड्रॉ की, ठीक है। अब हम सपोज करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 32 हर्ट्ज़। क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी, 32 हर्ट्ज़ है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस वेव की। क्लियर। अब इसी तरह एक वेव और मैं इधर ड्रॉ करूँगी, ठीक है, वो भी बिल्कुल इसकी तरह ही मैं करूँगी, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी हम सपोज करते हैं हमने स्लाइटली डिफरेंट ले ली, कितनी ले ली, 30 हर्ट्ज़ ले ली, ठीक है। क्लियर है। अब एक और डायग्राम बेटे मैं ड्रॉ करने लगी हूँ, डैट इज सी, ठीक है, पार्ट सी। अब देखो वो मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ी सी इससे हम बड़ी ड्रॉ करेंगे, वो यहाँ पे। फिर यहाँ से आप लोग इसको, ठीक है, इस तरह 3 डायग्राम्स अपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आप डॉटेड लाइन में इसको शो करें, यहाँ पे फिर हम इसको डॉटेड लाइन में शो करते हैं, ठीक है, ठीक। और एक आप यहाँ पे मैक्सिमम पे करेंगे, हम यहाँ पे डॉट लगाओ, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ ए, ये क्या है, बी, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास सेंटर में आएगा इसको हम कह देंगे 1/2s, ठीक है, 1/2s सपोज कर लेते हैं। और इसको हम लोग नीचे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डॉट यहाँ तक है,
और फिर इसको भी एरो लगा लो, इसको भी एरो लगा लो, इसको भी हमने एरो लगाया। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, x, ये क्या पॉइंट है y, और ये क्या पॉइंट है z बेटे। ये किसके इक्वल है 1/4 s के, ये किसके इक्वल है 1/4 s के, ठीक है। ये हमने क्या बना रहे हैं, दिस इज़ नोन एज रिजल्टेंट वेव। ये क्या है, रिजल्टेंट वेव। क्लियर। मैं अब क्या ड्रॉ कर रही हूँ, अब आप गौर करो इस डायग्राम पे, ठीक है। हमने क्या किया, हम यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेव ड्रॉ करेंगे जो कि 1/4 तो हमारी क्या हो जाएगी रिजल्टेंट वेव। अगर जब हम इनको प्लस करेंगे ना तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी ये इक्वल हो जाएगी, हम सपोज कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी 1/8 के, ठीक है। 1/8 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब इसको समझो, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बीट्स पढ़ा। मैं बीट्स पढ़ा रही थी, मैंने क्या कहा, जब दो वेव जो कि स्लाइटली डिफरेंट होंगी फ्रीक्वेंसीज, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं और एक दूसरे के ओवरलैप करती हैं तो उसके अंदर एक पीरियोडिक वेरिएशन आती है, किसके अंदर, साउंड वेव्स में, ठीक है। जो साउंड प्रोड्यूस होगी ना उसके अंदर वेरिएशन आएगी मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस की, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बीट्स कहेंगे, ठीक है। मैंने बीट्स की एक और डेफिनेशन भी यहाँ पे राइट कर दी कि बीट्स आर द पीरियोडिक वेरिएशन इन साउंड इंटेंसिटी हर्ड व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर विद ईच अदर। फिर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम पार्ट ए बी सी, तीन मैंने यहाँ पे पॉइंट्स की डायग्राम बेटे रेस शो की। ए पॉइंट, अगर हम लोग ए डायग्राम पे आते हैं, ये जो ए है डायग्राम मैंने नंबर ए बनाया, ये क्या बनाया है, ये डायग्राम जो है ये वेव फॉर्म मैंने उसकी बना दी ना। ये क्या शो कर रही है, इट शोज द वेव फॉर्म ऑफ नोट एमिटेड फ्रॉम ट्यूनिंग फोक ए। हमारे पास दो ट्यूनिंग फोक हैं, एक फोक को हमने क्या कह लिया ए, एक को हमने क्या कह लिया बी। एक से जो साउंड जनरेट हो रही है, जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसको मैंने इस तरह ड्रॉ किया और उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने क्या ले लिया, सपोज कर लिया 32 हर्ट्ज। दूसरा फोक जब हमने लिया, हमने क्या किया, दूसरे फोक को वो ये जो बी वाली डायग्राम है, ये क्या हो गया, ये दूसरा जो ट्यूनिंग फोक था डेट इज़ बी, सेकंड ट्यूनिंग फोक, उसका जो वेव फॉर्म था, जो वेव की डायग्राम थी वो मैंने ड्रॉ की और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 30 हर्ट्ज थी। यानी कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज में स्लाइटली डिफरेंस था, तो थोड़ा सा डिफरेंस था। ये 32 है तो ये क्या होगी, 30 होगी। उसके बाद मैंने पिक्चर आपकी जो शो की, जो शेयर यहाँ पे बनाई है, वो क्या हो गया, सी डायग्राम हमने शेयर की। ये डायग्राम क्या शो करती है, ये बीट नोट है। ये क्या है, बीट नोट, यानी कि जब दो स्लाइटली डिफरेंट जो साउंड वेव्स थी उन्होंने इकट्ठा एक ही डायरेक्शन की तरफ बेटा ट्रैवल किया, तो जो हमारे पास फिनोमेना आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीट कहते हैं ना। तो ये वो बीट नोट मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने डिफरेंट टाइप के ना हमने क्या बना दिया, इंस्टेंट बता दिया, डिफरेंट जगह बना दी, छोटी छोटी, एक मौके पे दूसरे मौके पे, उनको डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। हमने क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट बना दी, एक ये डिस्प्लेसमेंट है, एक ये डिस्प्लेसमेंट है और एक ये डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मैंने डॉट्स में बेटे लिखा। एक डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा, एक्स कह दिया, एक को हमने क्या कह दिया, वाई कह दिया, और एक डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक इंस्टेंस को हमने क्या कह दिया, जेड कह दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब दो वेव्स इकट्ठी जो है एक ही डायरेक्शन में बेटे मूव करती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट होती है, तो हमारे पास क्या आएगा कि मतलब कोई भी इंस्टेंट है, सपोज हम कहते हैं एक्स इंस्टेंट है, ठीक है, एक्स है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, लार्ज होगी, और जो साउंड आपको सुनाई देगा वो क्या सुनाई देगा, वो आपको ऊंचा साउंड, यानी कि आप लाउड साउंड जो है वो हर्ट करोगे। किस पे, एट एक्स, एक्स पे आप लोग क्या करोगे, लाउड, LOUD, लाउड साउंड हेड आप लोग हर्ट करोगे, सुनाई देगी आप लोगों को। कौन सी साउंड, एट इंस्टेंट एक्स, जब डिस्प्लेसमेंट एक्स होगी तो आप लोगों को तेज़ आवाज़ आएगी, ठीक है। लेकिन जब उसकी डिस्प्लेसमेंट और आगे आप लोग मूव करते हो, ट्यूनिंग फोक की 1/4s हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है दूसरे ट्यूनिंग फोक की डिस्प्लेसमेंट से। मैंने क्या कहा, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट दूसरे ट्यूनिंग फोक यानी कि ए और बी दो थे ना, तो उससे डिस्प्लेसमेंट जब ऑपोजिट हो जाएगी तो एट डिस्प्लेसमेंट वाई, हम वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, वाई की, एट वाई,
ठीक है, पहले हमने किसकी बात की, हमने कर ली एट पॉइंट अक्स की। अब हम कर रहे हैं कि जब वेव ड्यू टू वन ट्यूनिंग फोक, जब डायरेक्शन उनकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, तो एट डिस्प्ले यहाँ पे कौन सी डिस्प्लेसमेंट हम बता रहे हैं, एट वाई पॉइंट पे, एट वाई इंस्टेंट। तो वाई पे क्या होता है कि आपको बहुत कम साउंड सुनाई देगी, फेंट साउंड, ठीक है, या आपको क्या होगा, नो साउंड, कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी एट पॉइंट वाई की हम बात करें, ठीक है। तो आप कहोगे कि वाई पे जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी या आपको बहुत कम आवाज़ आएगी। फिर हम बात करते हैं अगला जो हमारा इंस्टेंट है 1/4 और बढ़ा दिया हमने। अगला इंस्टेंट हमारा क्या आ गया, z आ गया। z पे क्या हुआ कि दोनों की डिस्प्लेसमेंट जो है फिर क्या हो गया, दोनों की डायरेक्शन बेटे सेम होगी। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी एट पॉइंट z, तो फिर आपको क्या होगा, आपको दोबारा से जो है वो ऊंची आवाज़ सुनाई देगी, यानी कि लाउड साउंड आप लोग जो है वो हर्ट करोगे। क्लियर है, समझ आ गई इसकी। यहाँ तक हमने क्या फिनोमेना पढ़ लिया, हमने पढ़ा बीट्स, ठीक है। फिर मैंने आपको, हमने एक एग्जांपल की कि हमने सपोज किया कि हमारे पास दो ट्यूनिंग फोक हैं। क्या हैं, दो ट्यूनिंग फोक हैं, और उन दोनों, एक ट्यूनिंग फोक हमने क्या किया, एक हमने ए और बी कंसिडर किए, ट्यूनिंग फोक ए एंड बी, और हमने सपोज किया कि बेटे ए की जो हमने ली है फ्रीक्वेंसी वो कितनी ली, 32। बी की फ्रीक्वेंसी हमने कितनी ली, सॉरी 32 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हमने ली, 30 ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों ट्यूनिंग फोक्स को इकट्ठे मैंने वाइब्रेट किया और हमें एक साउंड जो है वो सुनाई देती है, जो उसके अंदर एक इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है उसकी इंटेंसिटी में, ठीक है। अल्टरनेटिंग, हमने यहाँ पे शुरू में जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब भी मैंने आपको बताया था ना, अल्टरनेटिंग आपको साउंड फील होगी, यानी कि साउंड जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंसिटी के साथ आप सुनते हो। और इस नोट को, जो आप लोग साउंड सुन रहे हो, इस नोट को हम लोग क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। और बीट किस वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इस पूरी एग्जाम्पल में बीट कैसे प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन साउंड वेव्स ऑफ ट्यूनिंग फोक ए एंड बी। दो फोक थे ए एंड बी, इन दोनों से जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसके इंटरफेरेंस से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, बीट प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गया। अब डिफरेंट टाइप की यहाँ पे कंडीशंस हैं, ठीक है। एक हमने क्या कर लिया, हमने एक डायग्राम ड्रॉ करके मैंने आपको बताई कि इस तरह की वेव फॉर्म है, फिर मैंने बी ड्रॉ की, फिर हमने क्या किया, एक सी डायग्राम ड्रॉ की। हमने वहाँ पे तीन डिफरेंट इंस्टेंट या तीन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ली। ए क्या ली, एक्स ली, ए क्या ली बेटे, वाई ली, और ए क्या ली, जेड ली। मैंने क्या कहा, एट पॉइंट एक्स, एक्स पे जब डिस्प्लेसमेंट एक्स है आपकी, ठीक है, यहाँ पे दो वेव्स अगर सेम डायरेक्शन में हो, दो वेव्स की डायरेक्शन अगर सेम हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जब साउंड डिस्प्लेसमेंट सेम होती है तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, लार्ज होगी, और आपको लाउड साउंड यहाँ पे सुनाई देगी। इसी तरह आफ्टर 1/4s डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर ये टाइम इंटरवल बता दिया 1/4s, ठीक है, आफ्टर 1/4s डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट वाई, यानी कि पॉइंट क्या आ गया, वाई इंस्टेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट वाई आ गई। वाई पे क्या होगा कि आपको जब दोनों ट्यूनिंग फोक जो हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव हो जाती है, तो आपके पास क्या हो जाता है कि आपको बहुत फेंट साउंड सुनाई देगी या आपको साउंड सुनाई ही नहीं देगी। उसके बाद हमने क्या देखा, एट पॉइंट जेड, ठीक है, पॉइंट जेड पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोबारा क्या होगी, दोनों की सेम डायरेक्शन में हो जाती है। जब सेम डायरेक्शन में हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि इनकी डिस्प्लेसमेंट फिर हाई होगी है, और इस केस में वेव जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी और आपको अगेन जो है वो एक लाउडर साउंड जो है वो सुनने को मिलेगी। इज दैट क्लियर। उसके बाद बेटे हमने क्या पढ़ा, मैंने जो रीडिंग टॉपिक की थी ये तो हमने पूरा पढ़ लिया, बीट्स का फिनोमेना कि अगर आपके पास दो ट्यूनिंग फोक है, एक ए है एक बी है, देन व्हाट हैपन। उसके बाद हमने जो चीज़ पढ़ी, हमने क्या करा कि हम जो दो ट्यूनिंग फोक्स हैं, ठीक है, उनकी नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो है वो हम लोग
किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि दोनों जो फ्रीक्वेंसीज हैं ट्यूनिंग फोर्क्स की उनको सब्ट्रैक्ट करके। सपोज करो हमने क्या किया था, हमने ली थी फ्रीक्वेंसी, अगर हम यहीं पे देखें हमने क्या फ्रीक्वेंसी ली थी, एक हमने ली थी एफ ए हमने क्या ली थी 32 हर्ट्स, ऐसे किया था। एफ बी हमने क्या ली, एफ बी हमने ली 30 हर्ट्स। मैं क्या कह रही हूँ कि हम इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का नंबर ऑफ बीट्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे नंबर ऑफ बीट्स कैसे फाइंड करेंगे, हम करेंगे फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एफ ए को एफ बी में से माइनस करो अगर, तो ये क्या आ जाएगा 32 माइनस 30 हर्ट्स। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगी बेटे, आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सच डैट ये जो एफ ए है ये ग्रेटर है किससे, एफ बी से। ठीक, तो नंबर ऑफ बीट जो हैं वो इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू साउंड्स इज मोर दैन, अगर ये जो नंबर ऑफ बीट्स हमने फाइंड किए हैं, जो हमने इनका डिफरेंस फाइंड कर लिया, अगर दो फ्रीक्वेंसीज, दो साउंड की फ्रीक्वेंसी, मैं क्या कह रही हूँ, अगर दो साउंड की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस बेटे 10 से ज़्यादा होगा, ये तो 4 आया ना, 10 से ज़्यादा होगा, तो हमारे लिए बीट्स को रिकॉग्नाइज करना जो है वो क्या हो जाएगा, बीट्स को पहचानना, बीट्स को सुनना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर उसका डिफरेंस क्या हो गया, अगर डिफरेंस दो फ्रीक्वेंसीज का, दो डिफरेंट साउंड की जो फ्रीक्वेंसीज है उनका डिफरेंस अगर 10 या 10 से ज़्यादा होता है, तो बीट्स को रिकॉग्नाइज करना जो है वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ लिया आज के टॉपिक में, हमने डिटेल से पढ़ा कि व्हाट इज़ बीट्स। बीट्स के बाद हमने कॉमन एग्जांपल ली ट्यूनिंग फोक की, ट्यूनिंग फोक की एग्जांपल लेके उसके 3 डिफरेंस हमने पॉइंट्स लिए, पॉइंट ए बी सी। ए को देखा हमने, ट्यूनिंग फोक ए के अंदर किस तरह का वेव फॉर्म बनती है, किस तरह का नोट बनता है वो बताया, बी में कैसे बनता है। फिर सी में हमने कहा कि जब दो बीट जो हैं, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, जब दोनों की डायरेक्शन अगेन सेम हो जाएगी, तो एट डिफरेंट इंस्टेंट, ये इंस्टेंट एक्स था, ये वाई था और ये जेड था, देन व्हाट हैपन्स, तो वो भी हमने सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट आउट किए। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं आपकी बुक पे, अगर आप लोग बुक पे आते हो बेटे, यहाँ पे आपको पिक्टोरियल कंपैरिजन एक दिया गया है, कंपेयर किया गया डिफरेंट जो साउंड्स हैं उनका। ठीक है, इधर देखें आप लोग, एक हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाई हुई हैं, ये कौन सी हैं, आपको ट्रांसवर्स वेव दिखाई हुई हैं। ठीक है, ये एक कंपैरिजन किया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स का कंपैरिजन है। ये साउंड वेव जनरेट हो रही है, एग्जांपल्स है, यानी कि क्यों भी म्यूजिक सिस्टम है। ठीक है, ये आपके स्पीकर्स हैं, ये सोर्स है जहाँ से साउंड जनरेट हो रही है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और ये ह्यूमन ईयर है जहाँ ये सोर्स है, और ये क्या है जहाँ से आपको साउंड सुनाई दे रही है। इसी तरह दूसरे में क्या है कि सोर्स क्या है, टीवी है। अब एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, टीवी ले लिया, वहाँ पे हमने एग्जांपल किसकी ली थी, स्पीकर की, यानी कि रिकॉर्डिंग, कोई भी आप जो स्पीकर आपके घर में अवेलेबल है, कोई भी साउंड सिस्टम हम ले सकते हैं। और दूसरे में क्या एग्जांपल आपकी टीवी की, यहाँ से ये आई दे दी है, ये क्या दे दिया, ईयर दे दिया। एक है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक है आपकी ट्रांसफर वेव्स, और इनका पूरी इनकी डायग्राम जो वेव की वो आपको शो की है। दिस इज़ एम्पलीट्यूड, ये रिफ्रैक्शन, वेवलेंथ और कंप्रेशन। इसी तरह ये आपको ट्रांसफर वेव दिखाई हुई है, इसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, इसके जो आपको पता है डाउनवर्ड अपवर्ड होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रफ और ट्रस्ट कहते हैं, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है डेट इज़ नोन एज वेवलेंथ। ये हम डिटेल से पढ़ के आए हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि बेटे जब जो अगर इस तरह का सोर्स होगा तो आपकी जो वेव जनरेट होती हैं डेट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इस तरह के सोर्स से जो आपकी वेव्स जनरेट हो रही हैं वो कौन सी हैं, वो हैं आपके पास ट्रांसफर वेव्स, और उनका कंपैरिजन इस डायग्राम में किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये आपने जो है अच्छी तरह से इसको करना है। ठीक है, आगे आए हैं आप लोग, अगले पेज पे आओ। One can use beat to tune a string instrument such as piano and violin by beating a note against a note of known frequency. The string can be adjusted to the desired frequency by tightening or loosening it until no beats are heard. आपको सिंपल बताया हुआ है कि हर पर्सन जो है, कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं,
ट्यून कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की साउंड वहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। कैसे? उसके किसी भी जो स्ट्रिंग है ना, उसको हम या तो उसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग्स बने होते हैं जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको एडजस्ट करके उनकी फ्रीक्वेंसी को अपनी मर्ज़ी से हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, उस स्ट्रिंग को लूज़ करके या टाइट करके। और ये इसको आप लोग क्या कह सकते हो कि जैसे आपने पूरा बीट्स पे नोट लिखा ना बेटे, तो उसके एंड पे आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, हेडिंग दे सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ बीट्स के यूजेस क्या हैं, बीट की एप्लीकेशन क्या है। तो उसकी एप्लीकेशन में आप बता सकते हो कि वन कैन यूज़ बीट टू ट्यून ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी जो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बीट्स को हम लोग यूज़ करके तो अपनी मर्ज़ी की फ्रीक्वेंसी जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे एडजस्ट करेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप के जो हैं वो लगे होते हैं बेटे, डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज थ्रेड लगे होते हैं, उनको आप टाइट करके या लूज़ करके तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो है अपनी डिज़ायर फ्रीक्वेंसी वहाँ पे सेट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की साउंड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और टॉपिक एंड पे आ रहा है छोटा सारा, बीट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव इट टर्म्स एट बीट फ्रीक्वेंसी f beat, the time interval between the two successive loud sound is t is equals to t2 minus t1, therefore f beat is equals to 1 over t। बीट फ्रीक्वेंसी हमने क्या फिनोमेना भी रीड किया मैंने, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? दो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखते हैं? एफ बीट किसके इक्वल होता है? एफ बीट इज इक्वल टू 1 over t। ठीक है, बस ये सिंपल सा हमारा फिनोमेना था, ये आपने याद रखना है। और जो टाइम इंटरवल है दो सक्सेसिव लाउड साउंड्स के दरमियान में, टाइम इंटरवल कैसे फाइंड करना है वो आपके पास क्या आएगा? t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा? हमने आज के टॉपिक में बीट्स कंप्लीट कर लिया। बीट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि बीट्स एक पीरियोडिक वेरिएशन है साउंड इंटेंसिटी में, जब दो वेव्स जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हों वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करें। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं। बीट्स की एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को ट्यूनिंग फोक की एग्जाम्पल बताई। ठीक है, वो एग्जाम्पल हमने डिटेल से पढ़ी, उस एग्जाम्पल की डायग्राम्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई। इन द एंड हमने उनका जो है डिफरेंस देखा कि उनका डिफरेंस जो है नंबर ऑफ बीट्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों फ्रीक्वेंसीज को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? नंबर ऑफ बीट्स आ जाती हैं। उसके बाद हमने बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ी। बीट फ्रीक्वेंसी में हमने क्या पढ़ा कि एफ जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो किसकी इक्वल होती है? वो होती है 1 over कैपिटल टी के इक्वल। और कैपिटल टी यानी कि जो टोटल टाइम इंटरवल है वो आप लोग कैसे फाइंड करते हो? वो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड करोगे? t इज इक्वल टू t2 माइनस t1 से। और मैंने आपको इन द एंड आपको क्या बता दिया कि अगर आपके पास आता है राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स, के बीट्स की एप्लीकेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं इस फिनोमेना को, तो उसमें आप लोग क्या बता सकते हो कि वी कैन यूज़ बीट टू ट्यून अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनके अंदर स्ट्रिंग्स लगी होती है उनको ट्यून करने के लिए हम लोग बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म कर रही हूँ। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई चीज़ है, कोई पॉइंट है आपको समझ नहीं आ रहा, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।